Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, how are you all? I hope you are all fine. और मैंने जो भी homework आपको दिया है आपने वो किया है. I hope that. Alright, and this is the lecture 3rd of the chapter 1 electricity. We are studying that. ठीक है, आज हम लोग मेनली स्पेसिफिकली सिर्फ कूलम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज अ वेरी मच फंडामेंटल लॉ, राइट. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ द थिंग वी डू हियर, लाइक व्हाट वी स्टडी हियर, वी डू स्टडी फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल एजुकेशन, right? And in this work, whole team will be helping you. You can see here, this team will be helping you in definitely achieving the targets you have set in your class 10, right? Now see, if you want any DPP and study material, you can definitely access them through the Telegram channel for your class. Now see, TTB010 is the code for the class 10. All you have to do is you have to go on the Telegram app, then you have to write this code, and then you will be accessing all the DPPs and study material there. Now the important thing I wanted to tell you is that this is a very much important thing. You can see here, what I really need to convey is you can go on this website www.talkingtextbooks.in. you can go on this website definitely. Now see, what you will be getting on that, you will be accessing such types of packages over there. Such type of packages are present over there. Now you can see here the title is Foundation and Olympiad, but this is an example, so you can, this is for class 6, right? And for every class there is such type of packages. So what you will be getting in such type of packages, you will be getting the comprehensive study material, recorded and live classes, right? And you will be getting the DPPs, right? You will be getting the homework submission feature, where you will be submitting your homework and we will be checking it. Then you will be getting the bi-weekly quizzes through which you can test yourself at how much you have gained the knowledge in a specific lecture. Then you will be taking the periodic test papers, and that periodic test papers will giving you the taste of the real competitive examination or the school examination you are going to face, right? So this is all about the package. These are the features you will be getting in the package, specific package, and then you can obviously click on the buy now, then you will be forwarded on this page. Now you can see the cost here is 9,000, but if you write here CYLIVE, if you write this code CY Live, then you will be getting 30% discount on every package. On every package you choose to buy, you will be getting 30% discount if you write this code. Now all you have to do is to click buy package, then your cost will become 6,300, which is very much less if you consider such type of features which are very much beneficial for you, right? And you can choose all the options here. All such options are available, whichever you want you can choose. Now you can see this number. This number is the number on which if you have any query, you have to call on this number. All your queries will be resolved regarding the packages, regarding how to apply it, regarding how to do anything on the website, right? Now let's move on to the lecture. That's the lecture 3rd. We are studying Coulomb's law, right? Now see, the Coulomb's law is one of the most basic law, or you can say the most fundamental law if you really consider the vast expenses of the electromagnetism. Alright, now see, first of all, definitely you have to take out your copies and books. Promise yourself you will be watching the whole lecture, right? You will be making proper notes, and then you will be definitely revising it on the daily basis. It's important. Revision is important if you really wanna crack a competitive exam or the school examination. Now see, you're going to face the boards too, right? So that means you have such a big target in front of you. That's why you have to study it very hard from the very beginning, right? That's why important is the revision. Now let's move on to the lecture. We will be learning only Coulomb's law today. Alright, so the Coulomb's law, what is it? देखो, Coulomb's law is one of the basic law. जैसे कि हम लोग मोशन में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, राइट? एंड ऑल द लॉज हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं, वो जो लॉ है वो बेसिक लॉ है. एंड जब हम मोशन से हट के बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा डिस्कस करने के लिए, पूरा डिस्क्राइब करने के लिए, हाउ द प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, कोई फिनोमेना, कोई जिसमें चार्जेस इंक्लूड हैं वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन सब को गवर्न करने के लिए, इन सब को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव सम बेसिक लॉज, एंड दिस कूलम लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ फॉर द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ऑल द सच लाइक मूविंग चार्जेस और द स्टैटिक चार्जेस, जो भी हम सब डिस्कस करते हैं, बेसिक एंड द मोस्ट फंडामेंटल इज द कूलम्स लॉ, राइट। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल वन एंड दिस डू एग्जिस्ट इन नेचर इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट number one point that this is the fundamental law ठीक है, which tells you what, क्या बताता है आपको, which explains the interaction between two static charges or the two charges. Explain the interaction between two charges. तो definitely what you will be getting by this Coulomb's law, you will be getting कि भाई अगर दो चार्जेस हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे तो कैसे फोर्स लगाएंगे, क्या फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से, राइट। एंड डेफिनेटली कूलम्स लॉ आपको चार्जेस के बारे में बताएगा, राइट। एंड ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, ग्रेविटेशनल लॉ, जो आपने ग्रेविटेशनल का फोर्स पढ़ा है, राइट, उसी के बिल्कुल सिमिलर है ये कूलम्स लॉ। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज वन ऑफ द बेसिक, सो डेफिनेटली इट विल टेल यू द वेरी मच बेसिक थिंग। नाउ सी, अभी मैं आपको बताती हूं दैट दिस स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that नंबर वन, क्या स्टेट करता है, ठीक है, नंबर वन दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस so it tells you the force between two charges, right? The force between two charges, number one, is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. That means जिन चार्जेस को या फिर जिन चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स कि भाई उनका ऊपर कितना चार्ज है, अगर हम साइन की बात नहीं करते, मतलब प्लस माइनस की बात नहीं करते, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड हियर, ठीक है, सिर्फ नंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर नेचर, ठीक है। तो जो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द फोर्स। दैट मीन्स इट सेज if F is the force, that is the Coulombic force, is directly proportional to the charge 1 Q1 और the charge 2 Q2, इन दोनों का जितना प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, राइट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है that is inversely, that force is inversely
proportional to the distance between the charges, to the square of the distance between the charges. So what does it say कि भाई अगर दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेट्स से d डिस्टेंस है, लेट्स से r, ठीक है, हम लोग r ले लेते हैं, व्हाट अबाउट इट, तो हमने ले लिया है भैया r जो है, तो दैट मीन्स ये इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फोर्स है, दिस इज द कूलम्बिक फोर्स एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. r इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस. ठीक है, तो दीज आर द टू इक्वेशन और यही क्या है, यही है हमारा कूलम्ब्स का लॉ. ठीक है, this is the Coulomb's law. You can say here, this law states that the force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. मतलब दोनों चार्ज जो हैं उनके ऊपर कितना चार्जेस है, लेट्स से टू बॉडीज आर देयर और टू बॉडीज के ऊपर कितना चार्ज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों चार्जेस को, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r square. That means inversely proportional to the square of the distance between the charges. Alright, now फटाफट तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए and then we will be talking about the thing that you will be getting. चलिए अब हम देखते हैं, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट हुआ, राइट. अब हम देखते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं. ठीक है, मैथमेटिकली हम इन्हीं दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे. तो लेट्स सी कि भाई हम किस तरीके से इसको मैथमेटिकली लिखते हैं. सी हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली. सबसे पहले तो हमने लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस. ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन देम. अब आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ सर्कल, लेट्स से इट्स अ बॉडी A. ठीक है, एंड इट्स अ बॉडी B. दिस इज A एंड दिस इज B. नाउ यू कैन सी कि भाई इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज Q1, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज Q2. अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. वो फोर्स क्या होगा, वो ये होगा. व्हाट इट विल बी सेइंग कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन दोनों के बीच से जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस विल बी द फोर्स. वी आर डीलिंग विद टू से बॉडीज और उनके ऊपर इतना चार्ज है. ठीक है, चार्ज्ड, वी कैन से चार्ज्ड बॉडीज, राइट. नाउ सी, जैसे ही हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे, इट विल बी लाइक K Q1 Q2 upon R square. Now what is K? This K is the proportionality constant. Proportionality constant मतलब जब ये proportional का साइन हटता है तो यहाँ पर एक constant आ जाता है. ठीक है, so this K is the constant. अब ये जो K है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि भाई दिस इज द फोर्स आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड एडिंग अ कांस्टेंट. ये जो फोर्स बना है दैट इज द कूलम्बिक फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज. यू कैन से दैट. ठीक है, तो वी कैन से भाई दिस इज द व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज. ठीक है, दो चार्ज बॉडीज के बीच में दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस K. ये जो K है इसका हमारे पास डेफिनेटली कांस्टेंट है तो वैल्यू तो होगा ही.
पर ये जो k है आपको इस बात के लिए समझना पड़ेगा दैट दिस k इज हेयर k जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है मीडियम क्या है। ठीक है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन मीडियम in which charges are capped. Alright, now say ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक k वैल्यू हमने कोई भी कांस्टेंट रख दिया है लेट्स से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब ना व्हाट इज मीडियम? मीडियम यहाँ पे क्यों काम आ रहा है? दैट इज द थिंग कि जब चार्जेस रखे हुए हैं, लेट्स से 2 चार्जेस, चार्ज्ड बॉडीज आर प्रेजेंट, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है? आर दे प्रेजेंट इन द वैक्यूम, और आर दे प्रेजेंट इन एयर, और आर दे प्रेजेंट इन वाटर और सम सॉलिड? तो जब हम इस चीज की बातें करते हैं कि कौन से मीडियम में है, तब हम यहाँ पर इस k की वैल्यू के बारे में बातें करते हैं, राइट? ये जो k है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए। लेट्स से इसका वैक्यूम में कुछ और नंबर होगा, कुछ और वैल्यू होगा, इसका एयर में कुछ और वैल्यू होगा, इसका वाटर में कुछ और वैल्यू होगा। तो ये उस मीडियम की वैल्यू की बात कर रहा है जिस मीडियम के अंदर हमने इन 2 चार्ज बॉडीज को रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जब जनरली बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द वैक्यूम। तो मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूं, मैं इसकी जो वैल्यू बताऊंगी दैट वुड बी द वैक्यूम, ठीक है। इसका मतलब जो चार्जेस रखे हुए हैं और वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ सी, वैक्यूम में तो रखे हुए हैं, जब आप क्वेश्चंस को डील करेंगे तब आपको स्पेसिफिकली दिया होगा, क्या दिया होगा? ये दिया होगा कि वो कहाँ रखे हुए हैं वो चार्जेस, और उनके हिसाब से आप डिफरेंट वैल्यूज दे, या तो आपको गिवन करके रखी होंगी, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन कर देंगे दैट द वैल्यू फॉर दिस मीडियम इज दिस, और समथिंग आपको उस मीडियम का कोई ना कोई वैल्यू बताएंगे। बट वैक्यूम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 9 into 10 की पावर 9, ठीक है। इट वुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. So this is the approx value you can see here. Now this is the value for k, that means the proportionality constant. This is the value of k. Now how to decide that the force here, ये 2 तरीके से हो सकता है, लाइक इट कैन बी अ रिपल्सिव फोर्स, इट कैन बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा दैट दिस फोर्स इज रिपल्सिव बिटवीन द बॉडीज और द अट्रैक्टिव इन बिटवीन द बॉडीज? उसके लिए आपको देखना क्या होगा? आपको ये देखना होगा कि जो 2 चार्जेस हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है। लेट्स से पहली वाली जो बॉडी है जिसका हमने Q1 चार्ज लिया है, लेट्स से उसके ऊपर प्लस है, ठीक है, एंड लेट्स से Q2 के ऊपर माइनस है। अगर एक पे प्लस एक पे माइनस है तो दैट मीन्स जब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो इट वुड बी अट्रैक्शन बिटवीन दैम, बिकॉज वी नो कि भाई जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे डू अट्रैक्ट, राइट। तो इट वुड बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम। बट अगर दोनों के दोनों नेगेटिव या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो व्हाट वी विल बी डूइंग? वी विल सेइंग कि जब ऐसा हो जाए तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम, ठीक है। तो आपको कैसे डिसाइड करना है, हाउ टू डिसाइड कि फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है? जस्ट लुक एट द साइन ऑफ बोथ द चार्जेस। अगर दोनों का साइन सेम है तो इट वुड बी रिपल्सिव, अगर दोनों का साइन डिफरेंट है देन इट वुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू शुड डिसाइड दैट इट इज रिपल्सिव और द अट्रैक्टिव। नाउ यू कैन डेफिनेटली राइट दिस पॉइंट आउट, सब बच्चे इसको लिखेंगे फटाफट से, दैट द साइन ऑन द चार्जेस, सभी लिखेंगे, द साइन ऑन द चार्जेस विल डिसाइड द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देती हूं, द साइन ऑन द चार्जेस विल डिसाइड द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि भाई जब दोनों का सेम साइन तो इट वुड बी रिपल्सिव,
दोनों का डिफरेंट साइन, तो इट वुड बी अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। नाउ यू कैन डेफिनेटली सी ऑल द स्टफ हियर। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताती हूं, एंड दैट इज यू कैन से अ गुड इंपॉर्टेंस रखता है, जो देखेंगे यहां पर ये जो k का वैल्यू है इसे हम क्या लिखते हैं, आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, ये जो k का वैल्यू है इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये क्यों एक मीडियम पे डिपेंड करता है, वी कैन से दैट। तो हम k का वैल्यू लिखेंगे, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम ये जो k का वैल्यू लिख रहे हैं दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो यू कैन सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलेंगे हम एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द वर्ड, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसका मतलब ही होता है लाइक इट व्हाट इट इज दैट वी कैन डेफिनेटली सी किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को स्प्रेड आउट करता है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। नाउ यू कैन सी, जब आप स्पेस की बात करते हो तो आप मुझे बताओ स्पेस में कुछ है क्या? सिर्फ वैक्यूम है और कुछ तो नहीं है, राइट। तो वहां पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो अपने आसपास क्या करता है, एक ऐसा अपना फील्ड या फिर ऐसा अपना पूरा स्पेस क्रिएट कर लेता है कि अगर उस स्पेस के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो उसको फोर्स फील होगा। ठीक है, यही एक आपस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यही जो आपस में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक, यू कैन से द एरिया अराउंड द चार्ज, उस एरिया की कितनी कैपेसिटी है कि वो दूर दूर तक फैले। ठीक है, वो जो कैपेसिटी हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो चार्ज है, ठीक है, उसका उस चार्ज का अपना ना एक इफेक्ट होता है, जैसे हम लोग कहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से कि हमारा जो ऑरा होता है, आप लोगों ने सुना तो होगा ना व्हाट इज ऑरा। ऑरा का मतलब होता है द एनर्जी अराउंड अ पर्सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स हियर, आई एम लिटिल बिट ऑफ टॉकिंग ऑफ डिफरेंट सम स्पिरिचुअलिटी थिंग। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जब किसी पर्सन के चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है, वी फील गुड व्हाइल टॉकिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, तो दैट इज द इफेक्ट ऑन द अदर पर्सन। इसी तरीके से जब कोई चार्ज प्रेजेंट होता है स्पेस में तो वो अपना एक ऑरा बना के रखता है अपने पास, एक यू कैन से एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जहां पर उसका इफेक्ट चलेगा, जहां पे उसका राज चलेगा, राइट। तो वो जो चार्ज है अपने चारों तरफ वो इफेक्ट क्रिएट करके रखता है। अब उस चार्ज की वजह से उसकी जो ये एबिलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है कि वो उस अपने फील्ड को दूर तक लेके जा रहा है, उसको कौन परमिशन देगा? उसको परमिशन देगा मीडियम, और मीडियम क्या है? वैक्यूम। तो दैट मीन्स उसकी कैपेबिलिटी कि वो वैक्यूम के अंदर अपने इफेक्ट को दूर दूर तक जाने दे रहा है, दैट इज कैपेबिलिटी, और वही क्या होती है? दिस एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स ये जो मीडियम है उसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटी होगी। लेट्स से वाटर के अंदर अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है चार्ज के चारों तरफ, राइट, एंड यू कैन से तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है दिस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, we can say here Newton, let me see what we say here is Newton inverse, ठीक है, मीटर -2 and then Coulomb square, right? So this is the value, this is the constant for the what? Vacuum. We are just talking about vacuum here, हम किसी और मीडियम की बात नहीं कर रहे, right? So this K का value will be 9 × 10⁻9 in the vacuum, and its epsilon naught का value will be 8.854 × 10⁻⁻12. This would be in the vacuum. Now you get what is it, epsilon naught or something. So please note them down. अपने language में लिखो जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है? And if you have any doubt, you can definitely put it in the comment, right?
ऑलराइट, तो हमें अब ये पता चल गया कि भाई जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, डिपेंड करता है साइन पे। किसके साइन पे डिपेंड करता है? दोनों चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है, राइट। नाउ ये फोर्स कहाँ वर्क करता है, किसके अलोंग वर्क करता है? तो यू कैन सी हियर, ये जो फोर्स है ये दोनों को सबसे पहले इनके जो सेंटर होंगे ना उससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैंने ब्लैक लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो आपस में फोर्स लगाएंगे ना, ये जो फोर्स है जिसकी बात हम कर रहे हैं, कूलम्बिक फोर्स की बात जो हम कर रहे हैं, सो द फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड along the line joining the charges, joining the centers of the charges. अब now you can see हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन तो नेचर बता देता है, बट ये अट्रैक्शन और रिपल्शन भी किस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यू कैन सी हियर द डायरेक्शन इज अलोंग दिस लाइन। अगर इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स को जोड़ दिया जाए तब जो फोर्स होगा दैट विल बी अलोंग दिस लाइन। तो इसी फोर्स में भले ही रिपल्सिव हो भले ही अट्रैक्टिव हो, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ डेफिनेटली कह सकते हैं दैट द फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉडीज, राइट। So you can note it down. This is the final point, and we have done all the things about the Coulomb's law. We have studied all the things, right? Now it would be very much easy, and then we will be solving the questions depending on this force. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। One object has charge of -5 coulomb and the other has a charge of +2 coulomb. Now it is so easy to calculate the force. देखते हैं, मेरे साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है, तब आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा। दिस इज दी गिवन। लेट मी चूज अनदर कलर। ठीक है, आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज द गिवन। नाउ लेट्स सी कि हमको गिवन क्या है। हमको गिवन किया है डिस्टेंस 0.6 मीटर, दोनों के बीच में 0.6 मीटर चार्ज है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट वुड बी डिस्टेंस, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज आर का जो वैल्यू है दैट इज 0.6 मीटर, ठीक है। तो 0.6 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब हमको देखना है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चार्ज है -5 कूलम और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है +2 कूलम। सो वी कैन से Q1 का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, और Q2 का वैल्यू है +2, ठीक है, ये दैट्स 2.0। अब आपको डिस्टेंस पता है, आपको K1 Q। अभी आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं बताया, आपको यहाँ नहीं बताया कि ये चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, क्या ये वैक्यूम में रखे हैं, क्या ये एयर में रखे हैं, क्या ये वाटर में रखे हैं। इसी वजह से आपको जो वैल्यू लेनी है K की वो फिक्स्ड वैल्यू लेनी है जो मैंने आपको बताई है, दैट इज फॉर दी वैक्यूम, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि भाई यहाँ पे पानी में रखे हैं या फिर कहीं और रखे हैं, तब हम उसका वैल्यू चेंज करेंगे। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो यू विल एज्यूम कि भाई ये जो दोनों चार्ज बॉडीज रखी हुई हैं वो रखी हुई हैं वैक्यूम में, एंड देन यू विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट से फोर्स का वैल्यू लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो फटाफट से इसमें वैल्यूज रख देते हैं। K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹ एंड C Q1 दैट इज 5। मैं माइनस नहीं ले रही हूं बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो आई विल बी टेकिंग ओनली 5 एंड देन Q2।
तो इट वुड बी 2 ओनली, ठीक है, डिवाइडेड बाय r यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर, तो इट वुड बी 0.6 का होल स्क्वायर। एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वो क्या कि यहाँ पे जो भी यूनिट्स हैं लाइक दिस मीटर, दिस कूलम, तो ये आपको हमेशा SI में मिलनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा आपको मीटर में मिलना चाहिए डिस्टेंस एंड कूलम्स में मिलना चाहिए चार्ज। अगर चार्ज बदल जाए, लेट्स से कभी कभी माइक्रो कूलम दे देते हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस कभी कभी सेंटीमीटर्स में दे देते हैं, कभी कभी मिलीमीटर्स में दे देते हैं और किलोमीटर्स में भी दे सकते हैं। तो ये तुमको तुम्हारा दिमाग लगाना है कि आपको कभी भी क्या नहीं करना है, मीटर में ही रखना है, उसके अलावा डिस्टेंसेस को चेंज नहीं करना है, ठीक है, हमेशा मीटर में रखेंगे। तो फटाफट से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 9 ये तो हो गया 10, तो इट वुड बी 9 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, और 0.6 यानी कि 0.36, ठीक है, तो 6 से 36 होता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इट वुड बी 0.36, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको फटाफट से। 9 के टेबल में 36 आता है, डेफिनेटली आता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, दैट वाज 4, ठीक है, तो 9 1s एंड इट वुड बी 0.04। तो हम क्या करते हैं, 0 को हटाते हैं सबसे पहले, into 10 की पावर 2, alright, तो it would be 1/4 into 10 की पावर 10 plus 2 it would be 12. 1/4 कितना होता है, 0.25, that is 1/4, right? तो we will be writing 0.25 into 10 की पावर 12 न्यूटन। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब तो और भी बढ़िया। जैसे क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इट वुड बिकम 11, ठीक है, एंड इट वुड बिकम 2.5 इंटू, अगर जिस किसी भी बच्चे का ये आ गया आंसर तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तब तो फिर क्या करें। तो इट वुड बी 2.5 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। सभी का यही आ रहा है, ठीक है। देखो कहां तुमने गड़बड़ की है, जिसका भी ये आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब उसने गड़बड़ की है, राइट। एंड अगर उसने गड़बड़ की है तो वी कैन से दैट वापस करो, और क्या कहेंगे, गड़बड़ हो गई तो वापस करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको नोट करें भाई, जिसका भी गलत हो गया है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें भी सब साथ साथ करते चलेंगे। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस सेज इफ ईच ऑफ द चार्जेस डबल्स व्हाट हैपेंस टू द फोर्स। अगर दोनों चार्जेस डबल हो जाएं तो क्या होगा फोर्स के साथ, हाँ बोलो। चलो इसको हम देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले तो। अब देखते हैं कि जो फोर्स है उसे हम कैसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हम फोर्स लिखते हैं। अब उसने क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द चार्जेस डबल्स। अब डबल्स हो जाए तो जो नया फोर्स आएगा लेट इट बी F डैश, ठीक है, ये F डैश है, दिस रिप्रेजेंट्स द नया फोर्स, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे भाई K, अब Q1 ट्वाइस हो रहा है तो आई वुड बी राइटिंग 2Q1, Q2 ट्वाइस नया हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इट विल बी सेइंग 2Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये 2 और 2 आ जाएगा बाहर तो इट वुड बी 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो इट वुड बी F डैश। तो अब मुझे बताओ ये K Q1 Q2 R स्क्वायर क्या ये ऊपर वाला फोर्स नहीं है ना, सेम टू सेम है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, F डैश बराबर 4 और पुराना F। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये पुराना वाला फोर्स है F, है ना, ये नया वाला फोर्स है F डैश। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर कभी भी
किसी भी फोर्स में जब कभी भी हम टू बॉडीज की बात करें, टू चार्ज बॉडीज की बात करें, तो अगर उस केस में क्या हो रहा हो, ये जो चार्जेस हैं अगर दोनों चार्जेस डबल हो जाते हैं तो जो फोर्स है उनके बीच का जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, लाइक सी 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? क्वाड्रपल होगा, डबल्स होगा, स्टेज द सेम, रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वाड्रपल्स। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। और आई होप सभी का यही सोल्यूशन आया होगा। जिसका नहीं आया इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड दिस सेज इफ द डिस्टेंस डबल्स व्हाट हैपेंस टू द फोर्स। अब की बार हम पूछ रहे हैं कि चार्जेस सेम टू सेम। ठीक है, देखो चार्जेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यही है कि चार्ज सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे पहले डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा था तो हमने एज इट इज लिया था, राइट। इसी तरीके से चार्जेस के बारे में अभी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एज इट इज लेंगे। अब वो क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है डिस्टेंस डबल्स तो क्या होगा फोर्स का। तो लेट्स से हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं इसका फटाफट से साथ साथ। दैट हमने क्या लिया? पुराना फोर्स। दिस इज द पुराना फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब नया फोर्स जो है उसमें क्या बोला गया है? दैट द डिस्टेंस डबल्स। तो भाई हमने तो लिख दिया के Q1 Q2 अपॉन 2R। ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दिया और इस पूरे का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है हम उसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर वही डिस्टेंस अगर डबल हो गया है तो उसका मतलब डबल हो गया तो मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, 2R का स्क्वायर होगा, राइट। अब हम देखते हैं, इसको आगे लिखते हैं। दैट के Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो इट वुड बी 4, 2 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 4R स्क्वायर हो गया। अब हम ये बात देख रहे हैं कि भाई के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो पहला वाला फोर्स है, राइट, पुराना फोर्स है। तो वी कैन से नया फोर्स बराबर 1/4, ठीक है, और पुराना फोर्स। तो इट वुड बी दिस मच। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? reduced by half, reduced by 1/4, stays the same, quadruples। अब तुम यहाँ देख पा रहे हो ये डिवाइड है। डिवाइड का मतलब 4 नीचे आ रहा है, राइट। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब जो उसका वैल्यू है वो तो घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। बाय हाउ मच? बाय 1/4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दैट्स हाउ वी डील विद ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट से इसे नोट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये क्या कहता है देखते हैं। इट सेज व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इफ यू डबल द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। अब की बार तुम्हें क्या बोला गया है कि तुम उनके बीच का डिस्टेंस को तो डबल कर रहे हो, साथ में सिर्फ एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करते हो तो क्या होगा। ठीक है, नया वाला जो है वो कितने टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो वी कैन से हियर, भाई फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे जैसे अब तक कर रहे हैं ना उसी तरीके से सेम टू सेम इसको सॉल्यूशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो यहां लिखेंगे कि भाई अगर F पुराना फोर्स हो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द पुराना फोर्स। अब जो नया फोर्स होगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा K, ठीक है, Q1 लेकिन डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो मैं Q2 का डबल कर देती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्या कर दिया, इसको 2Q2 कर दिया है डिवाइडेड बाय डबल द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 2R और इसका
स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे k q1 2, हम ये वाला जो 2 है ना उसको हम आगे लेके आ जाते हैं, तो इट वुड बी k q1 q2 अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, 2k q1 q2 अपॉन 4r स्क्वायर। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो इट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी यही लिख देती हूँ मैं, k q1 q2 अपॉन 2r स्क्वायर। अब हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो पुराना फोर्स था वो था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो नया फोर्स निकल कर आया है वो क्या है, 1/2 ऑफ पुराना फोर्स है। इसका मतलब हाफ हो गया ये फोर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, जल्दी से बताओ। क्या वो A है, क्या वो B है, क्या वो C है, क्या वो D है? फटाफट से मुझको बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये है f/2, 1/2 इंटू f, तो इट वुड बी 1/2x, ठीक है। अरे तुम ऐसा मत समझो कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे है 1/2x, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक तो सब में हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमको इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं चार्जेस, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट दीज आर द वेरी मच इजीएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस वापस से ट्राई करने हैं, ठीक है। जब कभी भी तुम अपना होमवर्क करना शुरू करो तो सबसे पहले इन चारों क्वेश्चंस को वापस से एक बार ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड देन आप होमवर्क करेंगे। एंड व्हाट विल बी द होमवर्क होगा आप लोगों का चेक पॉइंट जो है, ठीक है। चेक पॉइंट जो है उसी का होमवर्क आपको करना है और आप पूरा चेक पॉइंट A फिनिश करो, ठीक है। तो इसमें कौन इसमें सारे इलस्ट्रेशंस इंक्लूड हो जाएंगे, इलस्ट्रेशन 1 to 5 इंक्लूड हो जाएगा, राइट। एंड यू विल बी डूइंग इलस्ट्रेशन 1 to 5 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द चेक पॉइंट A। तो आप ये होमवर्क करेंगे और गूगल क्लासरूम्स पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इट वाज दैट फॉर टुडे, सो thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it and do your homework, that is important, ठीक है। सबको सब्सक्राइब शेयर करने के पहले आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इफ यू कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आती, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट करो। सो थैंक यू सो मच।